राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे 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 Hare राम Krishna, Hare राम Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare कृष्ण Hare. हरे हरे Hare हरे राम Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Hare, Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram 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 Ram, Ram Hare. Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Hare 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 Ram, Ram Ram Ram, Hare Ram Hare. Hare 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 Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram 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 Ram, Hare Ram Hare. Hare हरे Hare कृष्ण Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Hare 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 Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare Hare. Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare हरे हरे Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे Hare हरे Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare 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 Ram, Ram 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 Ram, Hare Ram Hare. Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Ram Hare. Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare. Hare Hare Ram Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Ram, Hare Ram Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare हरे Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Hare Hare. Hare Hare Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Hare Hare. Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। आप सभी को दर्शन लाभ अच्छे हैं होंगे, देखा होगा आपने भगवान के दर्शन, और आशा करते हैं आपकी माला भी हो गई होगी। लेकिन नहीं है, हुई है, कृपया बीच में ना छोड़ें। एक रिक्वेस्ट दिलीप प्रभु जी से आई थी, जिसमें अभी हमने देखा कि हम लोग एक ही व्यक्ति संकीर्तन करे। तो दिलीप प्रभु, ये जो उद्देश्य था हमारा, ये संकीर्तन करने का उद्देश्य था। जैसे कि मंदिर में सभी भक्त लोग मिलके जब करते हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम फिजिकली तो नहीं है मंदिर में, लेकिन मेंटली ये सोचें कि हम साथ साथ बैठ के जब कर रहे हैं, जिससे कि इसे संकीर्तन का लाभ मिलना कहते हैं। तो इसमें बहुत कलयुग के लिए खास तौर पे इसका वर्णन मिलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि संकीर्तन यज्ञ करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वो सतयुग में हजारों वर्षों तक तपस्या करने से मिलता था। हजारों करोड़ों वर्षों तक कोई व्यक्ति अगर जंगल में जाके तपस्या करे, उसको जितना फल मिलता होगा, उतना संकीर्तन करने से कलयुग में मिल जाता है। उसके बाद जो त्रेता युग में मूर्ति पूजा या यज्ञ आदि से जो लाभ मिलता था, वो लाभ संकीर्तन करने से कलयुग में मिल जाता है। तो यही उद्देश्य से हमने संकीर्तन यज्ञ की प्रार्थना करी थी। मैं आपकी समझ गया था, लेकिन हमारा उद्देश्य वही था प्रभु। सिर्फ मैं सोचता हूँ कि एक ट्यून में करेंगे तो उसका आनंद ज्यादा आएगा। जी, उसका भी आनंद है और संकीर्तन का भी आनंद है, दोनों का आनंद है। क्या फायदा संकीर्तन का ज्यादा है, तो जो फायदा है उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आप समय निकाल के कथा में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप जानते हो, आप सभी बहुत व्यस्त हैं। शनिवार वाले दिन समय निकालना, वो भी हरि कथा के लिए, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सब करें, लेकिन आप सभी फिर भी निकाल के आए, तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद प्रेरणा मिलती है। तो हम लोग आज मैं देख रहा हूँ कुछ नए लोग भी हैं जो शुरू से मैं नहीं देख पा रहा था उनको हमारे साथ। तो जैसे दिलीप प्रभु, आप क्या हमारी कथा सुनते हैं पहले से, या ऑनलाइन आप सुन रहे हैं? मैंने 2 वीडियोस आपने जो पोस्ट किए थे वो सुने पूरे। लास्ट वीक का आपने पोस्ट नहीं किया, तो मैं आपको वही रिक्वेस्ट करने वाला था कि आप अगर पोस्ट करेंगे तो मैं वो भी सुन पाऊंगा। मैं अभी 3 वीक पहले से ही शुरू किया अटेंड करना। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट वीक थोड़ी समस्या हो गई थी कि रिकॉर्डिंग, एक्चुअली जो अकाउंट है, इस अकाउंट में हमारी समस्या चल रही थी, तो वो मैंने समस्या दूर कर दी है। तो अभी क्या है कि रिकॉर्डिंग आपको पूरी मिल जाएगी। तो लास्ट वीक का भी मैं देखता हूँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मेरे पास आलोक प्रभु जी से भी रिक्वेस्ट आई थी, तो आलोक प्रभु जी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग एज वेल। हमारे साथ आज ईश्वरी के भी जुड़े हुए हैं, तो कृपया, आप पहली बार जुड़े हैं बताएंगे, या आप सुनते आ रहे हैं वीडियो? एक्चुअली मैं 2 अकाउंट से किया, आई एम सॉरी, मैं 2 अकाउंट से किया प्रभु। मैं एक से डिस्कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप और इसका थोड़ा ये हो रहा था, तो आई जस्ट हैव कनेक्टेड फ्रॉम बोथ अकाउंट्स। ओके प्रभु जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कथा को प्रारंभ करने से पहले हमने 3 मंत्र का उच्चारण किया था, आपने ध्यान दिया हो। सबसे पहला मंत्र था जयताम सूरतो पंगुर ममः मंद मतेर गति मत सर्वस्य पदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहनो। क्या कोई जानता है मंत्र का क्या मतलब है? इस मंत्र में हम लोग राधा मदन मोहन, जो भगवान के मदन मोहन विग्रह हैं, उनको प्रणाम करते हैं। दूसरा मंत्र था दिव्यद वृंदावरण्य कल्पद्रुम माधव श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थो
श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिवि सेव्यमानो स्मरामि। इस मंत्र में हम श्री गोविंद देव को प्रणाम कर रहे हैं। और तीसरा मंत्र हमने गाया था, दिव्य वृंदावन कल्पद्रुम माधव श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिवि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटा तटस्थितः कर्षण वेणु स्वनेर गोपीर गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। इस मंत्र में हम श्री राधा गोपीनाथ को प्रणाम करते हैं। तो पहले मंत्र में राधा मदन मोहन जी को प्रणाम किया गया, दूसरे मंत्र में राधा गोविंद देव जी को प्रणाम किया गया, और तीसरे मंत्र में राधा गोपीनाथ जी को प्रणाम किया गया। तीनों तो राधा कृष्ण ही हैं, तो तीनों में अंतर क्या है? इसके पीछे कथा है। ये तीनों विग्रह जो हैं, राधा गोविंद देव का जो विग्रह है, ये आपको जयपुर में मिलेगा। जयपुर में आप कभी जाए हैं इंडिया में, तो जयपुर में गोविंद देव जी के दर्शन जहां पर होते हैं, वो ये राधा गोविंद देव, उनकी बात हो रही है। दूसरे हैं राधा गोपीनाथ। राधा गोपीनाथ भी जयपुर में हैं। अगर आप बड़े बाजार की तरफ, जयपुर की तरफ निकलें, कोई अगर आप पहले से जयपुर जा चुके हो इंडिया में, या जयपुर प्रांत से अवगत हो, तो वहां पर गोविंद गोपीनाथ जी के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। और तीसरे विग्रह है राधा मदन मोहन। ये करौली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान में, जयपुर के आउटस्कर्ट में। तीसरा विग्रह ये वहां पर है। ये तीनों विग्रह जो हैं, ये वास्तव में सिद्ध विग्रह हैं। सिद्ध विग्रह जिनको कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण के समय से ही है यहाँ पर, और इनको भगवान कृष्ण के पोते जो थे उन्होंने बनवाया था। इन विग्रहों को बनाने की जब बात चली थी, तो उस समय उनका इच्छा थी कि एज इट इज भगवान जैसे दिखते हो वैसा विग्रह बनाया जाए। कैसे भगवान का श्रीमुख था, कैसे भगवान का वक्षस्थल था, कैसे भगवान के चरण थे, एक एज इट इज रूप में बनाया जाए, ऐसा उनकी इच्छा थी। तो उस समय उत्तरा जो थी, उत्तरा अभिमन्यु, जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी, और परीक्षित महाराज जी की मदर थी, माँ थी। तो और उत्तरा जो थी उनकी, और अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन, अर्जुन के पुत्र जो सुभद्रा से उत्पन्न हुए थे। तो अर्जुन जी का विवाह जब सुभद्रा जी से हुआ, जो कृष्ण की बहन थी, सुभद्रा जी कृष्ण की बहन थी, उनसे विवाह हुआ अर्जुन का। अर्जुन जी से पुत्र उत्पन्न हुए अभिमन्यु, और अभिमन्यु जी की शादी हुई उत्तरा जी से, और उत्तरा जी से पुत्र हुए परीक्षित। तो उत्तरा माता के निर्देशन में ये विग्रह तीनों बनाए गए थे, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी। ये तीनों विग्रह जो हैं वृंदावन के प्रमुख विग्रह हैं। इनके दर्शन करने से संपूर्ण कृष्ण का दर्शन करने का लाभ मिलता है। गोविंद देव जी का जो श्रीमुख है, जो मुखारविंद है, वो एज इट इज भगवान कृष्ण जैसा है। जैसे भगवान कृष्ण दिखते थे वैसा एज इट इज वैसा विग्रह है वो। गोपीनाथ जी के जो वक्षस्थल है, जो विग्रह के जो ये धड़ एरिया है, जितनी चौड़ी उनकी या जिस हिसाब से उनका वक्षस्थल है, वैसे बिल्कुल भगवान कृष्ण का वक्षस्थल था, एकदम एज इट इज। और मदन मोहन जी के जो श्री चरण हैं, जैसे उनके चरण हैं विग्रहों के, वैसे भगवान कृष्ण के श्री चरण थे। इतनी सिमिलैरिटी है इन तीनों विग्रहों में। तो इन तीनों विग्रहों के दर्शन, जब तक ये विग्रह वृंदावन में थे, तब तक जो वैष्णव लोग थे वो दिन में एक बार इन तीनों विग्रहों के दर्शन करते थे, ये सोच के कि संपूर्ण कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। तो इसलिए तीनों पहले गोविंद देव जी के दर्शन, पहले मदन मोहन जी के दर्शन करते थे, क्योंकि दर्शन हमेशा चरण से शुरू होते हैं, चरणों के दर्शन करें। फिर उन्होंने गोपीनाथ जी के दर्शन किए, जिसे वक्षस्थल के दर्शन होते थे। फिर गोविंद देव जी के दर्शन किए, जिससे कि श्री मुखारविंद के दर्शन होते थे भगवान कृष्ण। इन तीनों दर्शनों का लाभ आप अभी भी ले सकते हैं। अगर कभी आप राजस्थान जाएं तो तीनों विग्रहों के दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि इन तीनों विग्रहों के दर्शन करने से आपको संपूर्ण कृष्ण के दर्शन करने का लाभ मिलता है। तो ये मंत्र जो हमने पहले 3 मंत्र गाए, ये पहले इन तीनों मंत्रों में हमने तीनों प्रमुख विग्रहों को प्रणाम किया था कि हमें उन सभी को उनकी कृपा मिले, और इस कृपा के कारण हम भगवान के ज्ञान को समझ सकें।
भगवत गीता में हम लोग चौथे अध्याय पर आ चुके हैं। तो हम लोग अब यहाँ से भगवत गीता को पदार्पण करते हैं। लेट मी क्विकली शेयर। तो अभी तक भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान में भगवान ने अर्जुन को मोटे तौर पे, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ क्या हमने पढ़ा अभी तक। चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं। आध्यात्मिकता से जुड़ा व्यक्ति कौन है और भौतिकता से जुड़ा व्यक्ति कौन है। भौतिकता या फिर जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, वह 3 प्रकार के व्यक्ति हमने पढ़े थे। और जो भगवान में विश्वास करता है, उसको भगवान के प्रति प्रेम अर्जित करने के लिए 8 स्टेप से गुजरना पड़ता है। 8 स्टेप्स प्रोसेस। वो प्रोसेस जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम लोग भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो 8 स्टेप्स थे हमारे। सबसे पहले श्रद्धा होना, भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा की नहीं ये बात सच है। जब तक भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता है, तब तक हम लोग संसार में ही विश्वास रखते हैं। लेकिन और उसी कारण हमें धोखा मिलता है, कई बार संसार में छल कपट का सामना करना पड़ता है। तो किसी ना किसी के प्रति विश्वास तो हमें करना ही पड़ेगा। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। बिना विश्वास किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें विश्वास है कि हम आगे चल के सुखी रहेंगे, तभी हम अभी आराम से रह पा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि जो पैसा हम कमा रहे हैं, आगे चल के पैसा काम आएगा। हमारे विश्वास है। ये विश्वास है कि एरोप्लेन में बैठ गए, एरोप्लेन हमें सही समय पर सही गंतव्य पे सुरक्षित पहुंचा देगा। इस विश्वास के साथ हम एरोप्लेन में बैठे, भले ही ना हमने एरोप्लेन के ड्राइवर को देखा, ना हमने ये देखा कि एरोप्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे उड़ रहा है, किस तरह से क्या है। बस हमें विश्वास है चल रहा है। और साइंस का नाम देते हैं, साइंस है, साइंस में तो चल रहा है। विश्वास है। रात को हम सोते हैं सोच के कि विश्वास है कि सुबह जरूर उठेंगे। तो विश्वास हमें किसी ना किसी के प्रति करना ही पड़ेगा। उसी विश्वास का नाम श्रद्धा है। जब वो विश्वास भगवान के प्रति जागृत होता है कि भगवान वास्तव में है और उनकी कृपा से मेरा जीवन चल रहा है या हमारे मेरे सारे कार्य हो रहे हैं, तो वो श्रद्धा लेके जब आगे बढ़ते हैं तो साधु संग करते हैं। साधु संग अर्थात उसी प्रकार के मानसिकता लोगों का संग करना। साधु संग के बाद फिर हम खुद भजन करते हैं, जैसे नाम जप करते हैं। नाम जप करने के बाद फिर खुद तब हमारे मन से अनर्थ जो है, जब हमने श्रद्धा रख के आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद जब हमने साधु संग किया और साधु संग करने के बाद जब हमने भगवान का भजन किया, तो उसमें फिर हमें विश्वास होना शुरू और हमारे अनर्थ निवृत्त हो गए, अनर्थ गायब हो गए। तो इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और श्रद्धा से जब अनर्थ निवृत्त हुए, तब हमारी जो श्रद्धा थी वो निष्ठा में कन्वर्ट हो गई। तब हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा हो गई, कोई हमें नहीं डगमगा सकता। निष्ठा होने के बाद हमें फिर रुचि आती है, भक्ति में रुचि आना शुरू होता है। और रुचि आने के बाद आसक्ति होती है भगवान के प्रति। आसक्ति जब भगवान से हो जाती है, तो फिर हमारा भाव पैदा होता है भगवान के प्रति कि भगवान मेरे पुत्र हैं, या भगवान मेरे मित्र हैं, या मेरे स्वामी हैं, पति हैं। इस तरह के भाव हमारे मन में जागृत होते हैं और भाव जागृत होने के बाद भगवान से पूर्णता प्रेम स्थापित होता है। तो ये स्टेप है भक्ति प्रोसेस के। ये भगवान ने समझाए, हमने समझे इस चैप्टर में। इसके बाद भगवान बताया, जब हमने इस ज्ञान को समझ लिया, इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। मुझे ज्ञान पता लग गया, अब है अभिदय। अभिदय अर्थात मैं समझ गया कि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इससे काम करना है। अब मुझे काम कैसा करना है? फिर भगवान ने बताया कि तुम्हें अकर्म करना है। अकर्म अर्थात ऐसा कर्म करना है जिसका कोई रिएक्शन ना हो, कृष्ण कॉन्शियसनेस कर्म।
और कृष्ण कॉन्शियस कर्म के बाद फिर भगवान, इसका क्या फल होगा? हम भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। भगवान के धाम जो गोलोक वृंदावन है, मरणोपरांत वहां पे जाने का मौका मिल सकता है। सभी की मृत्यु आनी है, सभी को एक संसार एक दिन छोड़ना है, चाहे या ना चाहे। कहीं ना कहीं जाना भी है, आगे गंतव्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आ ही रहे हैं। ये ऐसा तो है नहीं कि ये 70 वर्ष का ही जीवन जो सामने दिख रहा है बस यही हमारी एग्जिस्टेंस है, इसके ना पहले कुछ था ना इसके खत्म होने के बाद कुछ रहेगा, ऐसा नहीं है। वेद हमारे वर्णन करते हैं कि मनुष्य जो है सिर्फ शरीर बदलता है, या आत्मा जीव जो सिर्फ शरीर बदलती है, और शरीर बदलने के बाद उसको नया शरीर मिलता जाता है उसके कर्मों के अनुसार। तो अगला शरीर हमें जो मिलेगा हमारे अभी के कर्मों पे निर्धारित होगा। अगर हमने अभी भक्ति करी, अच्छे से भगवान के बताए मार्ग पे चले भगवद गीता के अनुसार, तो भगवान कहते हैं, भगवत में हम पढ़ेंगे आगे, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तामस्ते भजाम में हम, जो मेरा भजन करता है वो मेरे धाम को वापस आता है, वो गोलोक वृंदावन में उसकी एंट्री सुनिश्चित हो जाती है। विश्वास होना बहुत जरूरी है इन बातों पे। कई बार विश्वास नहीं होता है, लेकिन अगर विश्वास नहीं होगा तो हम कहीं आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इस विश्वास के साथ हम लोग आगे प्रयास कर रहे हैं सीखने का। तो अकर्म के बारे में भगवान ने शिक्षा दी। अकर्म के बाद भगवान ने फिर बताया कि किस प्रकार से जो हमारे जो अकर्म कर रहा है व्यक्ति वो संपूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति है। और प्राचीन काल में समस्त मुक्तागम जितने भी ऐसे मुक्त जीव हैं जो कि प्राचीन काल में आ चुके हैं, उन्होंने अकर्म करने के साथ साथ उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। इस टेक्स्ट 15 में भगवान ने ये वर्णन किया था। आगे आगे फिर भगवान ने अकर्म और कर्म की परिभाषा के बारे में समझाया था। 22 श्लोक तक हम शायद पढ़ चुके थे। जो स्वतः होने वाले लाभ संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है, जो ईर्ष्या नहीं करता, सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है। और 23 भी हमारा शायद हो गया था, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसे सारे कर्म ब्रह्म लीन हो जाते हैं। हम लोग 23 से ही प्रारंभ करते हैं फिर से। यत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञायाचरत् कर्म समग्रं प्रवलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क का मुझे समस्या लग रही। आपको मेरी आवाज आ रही थी? हाँ आ रही प्रभु। अच्छा, जो प्रकृति गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वे इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतः वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कार्य यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है।
तो यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से द्वंद्वों से मुक्त होना। हमने द्वंद्व की परिभाषा समझी थी पिछली बार कि द्वंद्व क्या है। द्वंद्व अर्थात मन में डाउट्स जो आते हैं, हमारे मन में किसी प्रकार के भी डाउट्स अगर हैं कि ऐसा आगे सच होगा कि नहीं होगा, बहुत भगवद गीता पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्या जरूरत है पढ़ने की, कुछ समय तक पढ़ते हैं, पता नहीं कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या किसी भी प्रकार का कोई भी द्वंद्व हमारे मन में अगर रहता है, इन द्वंद्वों से जो मुक्त होके विश्वास के साथ एक निष्ठ होके जो आगे बढ़ रहा है भक्ति मार्ग में, उसके भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाता है। भौतिक कलमश जो गुण है हमारे, उनसे मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है। कलमश किस प्रकार के आते हैं कि किसी के प्रति हमने बुरा किया, बुरा तो करता ही नहीं, अच्छा भी करने से पहले ये सोचता है व्यक्ति कि कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। तो कृष्ण भावनामृत कर्म जब उससे होने लगते हैं तो वह व्यक्ति समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त होना प्रारंभ हो जाता है। ये देखिए, समझ जो हम पढ़ रहे हैं ये भगवत गीता, इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि हमारे जो कर्मिक रिएक्शंस लग रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में सुख और दुख आ रहा है, ये कर्मिक रिएक्शंस लगने बंद हो जाएं किसी तरह बस। और कोई जरिया नहीं है कर्मिक रिएक्शन को बंद करने का शास्त्रों के अनुसार। शास्त्र में बताते हैं कर्मिक रिएक्शन जब तक लगते रहेंगे जब तक हम इन तीनों गुणों के अंतर्गत रह के काम कर रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे ही हम इन गुणों से ऊपर उठते हैं तो कर्मिक रिएक्शन लगने बंद हो जाते हैं। तो हमें यही कला सीखनी है, कैसे हम गुणों से ऊपर उठें। इन गुणों से मुक्त होने का एकमात्र साधन जो भगवान ने बताया है वो है कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानना। जैसे हमने प्रारंभ किया था, भाव स्टेज पर आके जागृत होता है कि कैसे हम, मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। इस संबंध को हम जब समझ लेते हैं तो हम तब जाके सारे कार्य अपराम होने लग जाते हैं। ये थोड़ा टॉपिक इसलिए टिपिकल है कि यहाँ पे हमें 2-3 चीजें रिलेट करनी पड़ रही है। तो अगर आपके मन में बीच में कोई डाउट आए तो आप हैंड रेज बीच में भी कर सकते हैं, तो हम समझ के आगे बढ़ेंगे, जिससे कि ऐसा ना हो कि कुछ चीज छूट जाए हमसे। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतः वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है, तथा उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो कृष्ण की प्रसन्नता ही उसका एकमात्र उद्देश्य रह जाता है और कोई उद्देश्य नहीं होता। तो इस चीज को हमें जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे इस बात को तो हमारे जीवन में जो कष्टों की श्रृंखला है वो कभी समाप्त नहीं होगी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्म योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। इसको भी हमने पिछले हफ्ते कवर किया था, लेकिन इसको थोड़ा सा हम हाई लेवल पे लेते हैं यहाँ पर, कि इसमें वर्णन कर रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ इस चीज का मान के चलें कि अगर हम भक्ति में लगे हैं, अगर हम भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति होगी। मन में अविश्वास आ सकता है कि भगवत धाम किसने देखा है, कहाँ भगवत, किसको पता हो, कौन बता सकता है। जैसे हम पहले एक चर्चा करते थे तो हमारे ही घर में कंट्रोवर्सी कई बार होती थी, या कि क्या बात कितनी सच है कितनी झूठ है। कई बार हमें विश्वास नहीं होता है भगवत धाम है भी कि नहीं, ये सब लिखा है, ये सब लिखने वाली बातें। लेकिन यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि भगवत गीता को कहे हुए 5000 साल हो चुके हैं। 5000 साल से तो भगवत गीता लिपिबद्ध है, यानी लिखित रूप में है। इससे पहले लोगों को कंठस्थ याद हुआ करती थी, लेकिन 5000 साल तो भगवत गीता को अभी लिपिबद्ध हुए हैं।
इसके अलावा भगवत गीता जो हम सुन रहे हैं, इसको इन 5000 सालों में आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये इसमें कोई एक श्लोक भी गलत हो, या इसमें किसी बात का, कितने सारे मनीषी आके जा चुके हैं, कितने लोगों ने भगवत गीता को पढ़ी। चाणक्य पंडित आए, चाणक्य पंडित जी ने अपने समय के विद्वान थे, उस समय उनके बारे में वर्णन आता है, वो भी भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन जीते थे। प्राचीन हिस्ट्री में जाएं, प्राचीन काल के समय में जाएं तो बड़े बड़े जैसे नारद मुनि हुए, या और बड़े बड़े संत महात्मा हुए, वेद व्यास जी हुए, इन्होंने भगवत गीता को लिपिबद्ध किया और आगे लोगों को पढ़ाया। मॉडर्न हिस्ट्री में आए, अगर हम अभी के समय में, हमारे आपके समय में देखें तो कितने ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता के हिसाब से जीवन जी रहे हैं अभी अपना। उनमें एल्फ्रेड फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, या ऋषिकेश मोहब्बतलाल जी हैं, या और दूसरे मनीषी लोग जो हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं, जो भगवत गीता को सुनते हैं। यहाँ तक कि इंडिया के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भगवत गीता का प्रचार प्रसार करते हैं, या देखते हैं, पढ़ते हैं उनको जीवन में। हमारे गुरु महाराज जी ने उनको भगवत गीता प्रदान करी थी। तो कहने का अर्थ ये है, ये मैं बात इसलिए उठा रहा हूँ कि भगवत गीता जो है वो सिर्फ किताब ही नहीं है, उसके अंदर लिखी हुई एक एक बात सत्य है, और उसको अपने अपने समय के सभी लोगों ने आजमा के देखा है। तो यहाँ अगर ये बात उठ के आ रही है कि जो ऐसे कर्म में पूर्णता लीन होता है, उसे अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, तो ये संपूर्ण सत्य बात है। इसमें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, किसी प्रकार कोई झूठ वो नहीं। तो इसको हमें एज इट इज अपना लेना चाहिए, क्योंकि इसको जरूर मनीषी लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने इसको आजमा के देखा होगा, इसलिए आगे बात पढ़ी है, वरना ये श्लोक अभी तक इस भगवत से निकाल दिया गया होता। तो इससे हमें एक ज्ञान और मिलता है कि भगवत धाम नाम की कोई जगह भी है, जिसे हम वैकुंठ लोग बोलते हैं, या बोलते हैं गोलोक वृंदावन धाम, वो वास्तव में एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ये सब कपोल कल्पना है। एक बार एक भक्त से चर्चा हो रही थी, तो उस भक्त ने बोला कि आपके यहाँ एनालॉजीज बहुत प्रस्तुत करी जाती है। मतलब ऐसा है कि आप काल्पनिक दुनिया में बातें करते हैं कि भगवान का धाम होगा, मृत्यु के बाद आप कहीं जाएंगे, वैकुंठ लोक होगा, संसार में ये सब होगा। तो इसका क्या बेसिस क्या है? तो भक्त ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जब भी हम कल्पनाओं की बातें करते हैं या काल्पनिक बातें करते हैं, तो उसका एक बेसिस होना आवश्यक है। अगर हमारा बेसिस तो वेद पुराण है, उन वेद पुराणों के आधार पर हम लोग वो सब बातें करते हैं, क्योंकि वेदों को जैसी वेदों में लिखी है वैसी बात चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन उस व्यक्ति से करा कि जब आप विश्वास करते हैं हैरी पॉटर के ऊपर, जब आप विश्वास करते हैं सुपरमैन के ऊपर, जब आप विश्वास करते हैं ऐसे जो काल्पनिक कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, और उसके अनुसार अपने बच्चों को वैसे ही कपड़े दिलाते हैं, वैसे ही जीवन धर्रा बनाने का प्रयास करते हैं, उन सब बातों का क्या बेसिस है? किसने देखा है हैरी पॉटर को? किसने देखा है सुपरमैन को? किसने देखा है स्पाइडरमैन को? किसने देखा है डिज्नी वर्ल्ड? लाखों रुपए खर्च करते हैं डिज्नी वर्ल्ड जाने में, वहां की कल्पनाओं वाली दुनिया में व्यतीत करने में, समय बिता के आने में। उनका कुछ बेसिस नहीं है। लेकिन जब भगवान की बात होती है, भगवान की बातें चर्चा शुरू होती है, तो उसके पीछे बेसिस तलाशना शुरू करते हैं। तो ये इस कलयुग की देन है। कलयुग में मनुष्य की जो भाग्य है, मंद भागी, मंद बुद्धि, मंद विचारधारा वाले व्यक्ति है। तो ये कलयुग में भी शास्त्रों वर्णन किया गया है। तो हमारी जो बेसिस है, गीता का बेसिस है, या गीता में कहीं कोई बात का बेसिस है, वो वेद और पुराण है, जो कि संसारिक व्यक्ति ने नहीं लिखे। अगर हम हैरी पॉटर, स्पाइडरमैन, सुपरमैन ऐसे काल्पनिक कॉमिक कैरेक्टर्स पे विश्वास कर रहे हैं, तो भगवान पे और भगवान धाम में विश्वास करने में हमें क्यों परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। तो यही यहाँ पे वर्णन हुआ है कि जो पूर्णतया इस ज्ञान से लिप्त होकर आगे बढ़ता है, उसको भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि इसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हवन जो हम कर रहे हैं, क्या हवन है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ।
हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की बस है भगवान को प्राप्त करना। कोई आपको पंडित ब्राह्मण के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं कलयुग में, किसी हवन सामग्री यज्ञ मंडप सजाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण शुद्ध नहीं है। कोई अपने आप को रियल ब्राह्मण क्लेम नहीं कर सकता आज के समय में। ब्राह्मण कौन होते हैं? वेद पाठी विप्रहा संस्कार द्विजोत्तमा। शास्त्र वर्णन करते हैं, जन्मते जायते शूद्र, जन्म से हम सभी शूद्र हैं, हमारे विचारधारा जन्म शूद्र हैं, चाहे किसी भी युग किसी भी परिवार में जन्म क्यों ना हो। संस्कार द्विजो उत्तमा, जो संस्कार हमने पढ़ते हैं जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, फिर सबसे पहले गर्भोधान संस्कार होता है, फिर यज्ञोपवीत उपवंशन संस्कार होता है। ऐसे 16 संस्कार बताए गए हैं। संस्कार जब पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे हम? संस्कार द्विजो उत्तमा, संस्कार पढ़ने पे उत्तम बनते हैं। फिर वेद पाठी विप्रह, जब वेदों का अध्ययन करेंगे तो विप्र ब्राह्मण के उपाधि तक पहुंचेंगे। तो विप्र बनना इतना आसान नहीं है। आज के समय में किनके संस्कार होते हैं, कौन संस्कार कराता है, किसी को परवाह भी नहीं। तो ब्राह्मण जो है बहुत ही मुश्किल है संसार में मिलना, और ब्राह्मण को, और जो इसलिए यज्ञ आदि भी पवित्र नहीं है, ब्राह्मण पवित्र नहीं है, यज्ञ सामग्री भी पवित्र नहीं है। पता नहीं किस प्रकार कैसे बन के यज्ञ सामग्री बन रही है। तो इस युग में, कलयुग में जो हवन यज्ञ बताया गया है वो बताया गया है संकीर्तन यज्ञ। कुछ नहीं करना है, परिवार में अगर आप सभी 5-6 लोग हैं, 10-12 लोग हैं, साथ मिलके 5 मिनट 10 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अगर आप करते हैं तो आपको संकीर्तन यज्ञ का फल मिलता है। और यही यज्ञ इस युग के लिए दवाई बताई गई, और कोई दवाई नहीं है इसलिए। और ये पूर्णतः आध्यात्मिक है, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ आपको भगवान के नाम का उच्चारण करना है एक साथ। और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हवि क्या है संकीर्तन यज्ञ में? जो आप शब्द निकाल रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हवन और हवि दोनों पवित्र हैं कलयुग में। अगर इसके अलावा कोई और अगर हम यज्ञ आदि करते हैं तो उसमें गारंटी नहीं कि ब्राह्मण पवित्र होंगे कि नहीं होंगे, या हवन आदि सामग्री पवित्र मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस यज्ञ को करते हुए जो भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ता है वो निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है, इस श्लोक के अनुसार। अगले श्लोक पे चलते हैं। क्या कोई पढ़ना चाहेगा अगला श्लोक, भगवान की वाणी? हाँ प्रभु, मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए प्रभु। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्मग्रामं परे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। पर प्रभुपाद की जय। जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है: सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित हैं उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को उष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं।
ऐसे लोग बहिर्स्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही पर ब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी हैं, किंतु उनका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। धन्यवाद प्रभु। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के यज्ञों की यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जैसे हमने समझा अभी श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, जो कि किसी हेतु के कारण, किसी उद्देश्य के कारण यज्ञ करते हैं। जैसे कई लोग शनि देव जी का यज्ञ कराते हैं, उनको तेल चढ़ाते हैं जाके शनिवार वाले दिन। कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ यज्ञ करते हैं, कुछ लोग और दूसरे यज्ञ करते हैं। तो उसमें हेतु अगर जुड़ा होता है किसी प्रकार का कि मुझे ये रिजल्ट मिले, या मुझे कुछ मेरे संसारिक कष्ट दूर हो जाएं, या मुझे नौकरी अच्छी मिल जाए, या मुझे किसी मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, या कोई जीवन परेशानी ना आए, तो ऐसी भावना के कुछ अगर उद्देश्य जुड़ा हुआ है हमारे यज्ञ, तो वो जो है कर्म कांड यज्ञ, द्रव्य यज्ञ कहलाता है। द्रव्य अर्थात हमें कुछ चाहिए रिटर्न। और कुछ लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं। ज्ञान यज्ञ अर्थात जो ज्ञान अर्जित करने के लिए, जिन्होंने सिद्धि अर्जित करने के लिए जो यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन भक्ति योगी जो है, भगवान की भक्ति में जो लगा हुआ है, इसमें अर्जुन की उपमा यहाँ दी गई है, वो सर्वस्व कृष्ण को समर्पित कर देते हैं यज्ञ में, कृष्ण के लिए कार्य करते हुए। जब हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने सर्वस्व कृष्ण को समर्पित कर दिया है। जैसे हम अपनी जॉब पर जाते हैं, तो जॉब पर हम किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए काम कर रहे हैं, हमें तो पैसा मिल रहा है, वो भी उद्देश्य होता है। लेकिन वास्तव में वो काम किसके लिए हो रहा है? उस कंपनी के मालिक के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वो कंपनी है जहां पर हम जॉब कर रहे हैं। तो उसको समर्पित हो रहा है। जो भी एक्स्ट्रा रिटर्न आ रही है या इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ रहे हैं उसके पास, वो सब उस कंपनी के अंदर जा रहा है। हमें तो हमारे काम का वेतन भत्ता मिल जाता है उसमें, लेकिन जो कार्य एक्चुअल में हो रहा है उस कंपनी के मालिक को संतुष्ट करने के लिए हो रहा है। उसी प्रकार से जो भक्ति से जुड़ता है, जब वो अपना कार्य कृष्ण के लिए करना शुरू करता है, तो कृष्ण जब संतुष्ट होते हैं तो वह व्यक्ति भी संतुष्ट हो जाता है जो कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है, और उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आते। और वो कार्य प्रारंभ करने की विधि है संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन। श्लोक संख्या नंबर 26 कोई पढ़ना चाहेगा? वो आप श्लोक पढ़ेंगे, मैं टेक्स्ट इन पर्पल पढ़ लूंगा। ठीक है प्रभु। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमग्निषु जुहति, शब्दादीनि विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुहति। टेक्स्ट, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी शववादी क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रित रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्र विषयों की को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। परपट श्रील प्रभुपाद की जय। मानव जीवन के 4 आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के नियमित हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः वे मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्य गण प्रामाणिक गुण की देखरेख में इंद्र तृप्ति से दूर
रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल धार है। अंत शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामुन कीर्तन अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वो सांसारिक शब्द ध्वनि से दूर रहता है और उसे श्रवण इंद्रिय हरे कृष्णा की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इस प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्र तृप्तियों की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्र तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप में से प्रवृत्त नहीं होता। उस उद्देश्य से प्रत्येक समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनक्षति यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति को आहुति कर देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हुए ब्रह्मचारी का जीवन और नियमित गृहस्थ का जीवन वर्णन कर रहे हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियों तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में सुहा कर देते हैं, और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में सुहा कर देते हैं। तो नियमित गृहस्थ कौन है? नियमित गृहस्थ दो प्रकार के शादीशुदा व्यक्ति होते हैं शास्त्र में। एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृह मेधी। गृहस्थ वह व्यक्ति है जो नियमित जीवन जी रहा है, नियमितता के अनुसार अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके जीवन जी रहा है। गृह मेधी वह व्यक्ति है जो सिर्फ अपने सांसारिक जीवन को भोग रहा है, एंजॉय कर रहा है। क्या वो बुरा है? बुरा इस गृह मेधी के लिए इसलिए वहां पे खंडन मिलता है शास्त्रों में कि अगर हम इंद्रियों की सेवा में लग जाएंगे, जैसी हमें इंद्रियां सुख भोगने के लिए कह रही हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, तो अंततोगत्वा ये इंद्रियां ही हमें कष्ट प्रदान करेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी इंद्रियां, किसी की जबान रूपी इंद्रिय पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी मिल जाए खाना प्रारंभ कर देता है, और कितना भी कोई कंट्रोल नहीं, तो अंततोगत्वा ये पहले यही इंद्रियां उकसाती हैं कि खाओ, जितना मन रहा है खाते रहो। बाद में जब पेट में या कहीं पे हलचल दर्द वगैरह होता है, तो फिर अंदर से ये आवाज आती है, क्यों खाया इतना, नहीं खाना चाहिए। वही मन हमें बाद में डांटता भी है, जिस मन ने पहले हमें लगाया इंद्रियों के द्वारा। तो जो गृहस्थ व्यक्ति है उसको नियमित जीवन जीना चाहिए, इंद्रिय विषयों के में ना लग के कृष्ण की तुष्टि के लिए इंद्रिय विषयों में अपने को आसक्त नहीं करना है। उनमें से और जो ब्रह्मचारी है उसको अपने ब्रह्मचर्य को संभाल के रखना चाहिए। ब्रह्मचारी व्यक्ति वह है जिसके जो अपने ब्रह्मचार्य को संजो के रखा हुआ है, और जो कि विभिन्न प्रलोभनों से भी आकर्षित नहीं होता। जब वह व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य को प्रोटेक्ट करता है तो वो भी यज्ञ के बराबर है, एक प्रकार से यज्ञ कर रहा है। और एक गृहस्थ व्यक्ति भी जब नियमित जीवन जीता है तो भी एक प्रकार से यज्ञ के बराबर ही समझा गया है। किसी प्रकार और इसमें दोनों ही प्रकार के व्यक्ति जो हैं, जब तक हरि नाम का सहारा नहीं लेते, हरि कृष्ण महामंत्र का सहारा नहीं लेते, तब तक मन को और इंद्रियों को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं ये इंद्रियां भटका के ले जाएंगी। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये एक प्रकार से आप समझिए 5 कैमरे हैं लगे। जैसे आप कभी किसी मॉल में या किसी शॉप पर जाते हैं, तो उस शॉप के मालिक ने अलग अलग फ्लोर के लिए अलग अलग कैमरे लगा के रखे हुए हैं सीसीटीवी पर, और वो एक जगह बैठ के देखता रहता है उसके फर्स्ट फ्लोर पे क्या काम चल रहा है, उसके नौकर चाकर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में सब काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दूसरे गोडाउन में सारा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। सब जगह जहां जहां उसकी पहुंच है वहां उसने सीसीटीवी कैमरे लगा के रखे हुए हैं, और एक बड़े से स्क्रीन पे अपने ऑफिस में बैठ के देखता रहता है। जहां थोड़ी सी गड़बड़ दिखती है, जो चीज उसे देखनी होती है, उस पर्टिकुलर जगह का कैमरा एनलार्ज कर लेता है, वो एनलार्ज करके फिर उस जगह को ही देखता है। उसी प्रकार से हमारी जो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक,
जिह्वा और हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स या जो हमारी त्वचा है, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इनमें से ये सभी इंद्रियां हमें किसी न किसी प्रकार का ज्ञान देती हैं, अर्थात कि हमें आकर्षित करती हैं। इनमें इतनी पावर है कि हमें एक किसी भी चीज के प्रति आकर्षित कर सकती हैं। जैसे आंखों ने कुछ गलत होता देख लिया या कुछ देखा, तो यह हमें आकर्षित करके उस तरफ लेके जाने की क्षमता रखती है और हमें उस कार्य में इन्वॉल्व कर सकती है। कानों ने किसी की निंदा चुगली सुन ली, तो हमारा व्यक्ति का मन भी निंदा चुगली करने के लिए उकसा सकती है। ये हमारा अपना भी मन करेगा किसी दूसरे की निंदा चुगली में आने का, करने का। या सपोज करिए किसी के बीच में चर्चा चल रही है, या अगर जब कभी भी मैच होता है, सपोज करिए इंडिया से हम सभी हैं, वर्ल्ड कप इंडिया का मैच होता है, कहीं से कोई कमेंट्री की आवाज कान में आ गई, अरे कमेंट्री की आवाज आ रही, भले ही हम कितना व्यस्त क्यों ना हो, तुरंत रेडियो खोलते हैं, देखें क्या स्थिति चल रही है। तो ये इतनी जबरदस्त प्रबल इंद्री है कर्ण रूपी इंद्री, इसे ज्ञान इंद्री बोला गया है। नाक, कहीं पे बहुत स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आ गई हमारे, ये शरीर, पूरे शरीर को खींच के उस जगह पर ले जाने की शक्ति रखती है जहां पर वो स्वादिष्ट भोजन बन रहा है। जिह्वा और नाक एक ही काम है कि जिह्वा स्वादिष्ट भोजन जिसको चखने का आदत है, उसने वो स्वादिष्ट भोजन बनते हुए देख लिया, तो ये उसको वहां पे ले जाने की पूरी शक्ति रखती है। तो ये पांचों इंद्रियां और हमारी त्वचा, जो सेंसुअल ऑर्गन्स है, सेक्सुअल ऑर्गन्स है, ये भी ज्ञान इंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। तो ये पांचों इंद्रियां 5 पागल घोड़े के समान है, जब तक ये हरि नाम का सहारे पे नहीं है और जब तक ये भगवान की भजन भक्ति में नहीं लगी है। एक पागल घोड़ा एक दिशा में जा रहा है, दूसरा पागल घोड़ा दूसरी दिशा में जा रहा है। आंख कहती है वो देखो, कान कहते हैं किसी की निंदा चुगली सुनो, जबान किसी और कहीं पे ले जाने का प्रयास करती है, होटल में कहीं पर, किसी दूसरे जगह पर कुछ भी खाने के लिए। यहाँ तक कि जीवों को मार के भी लोग खा लेते हैं इस जबान रूपी इंद्री को संतुष्ट करने के लिए। किसी निसहाय जीव को मार के खाना कितना दुष्कर है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी मलिन है, इसको हम नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का सहारा हमने नहीं लिया है। तो किसी को मार के खाना हमें अजीब ही नहीं लगता, अरे क्या हुआ, तो खाने के लिए बना है, ऐसे लोग बोलते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं, अरे हम नहीं खाएंगे तो इनकी बहुत पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जैसे कई लोग चिकन वगैरह कुछ खाते हैं, बोलते हैं हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा इसका, ये तो बहुत पॉपुलेशन बढ़, जैसे कि सारी पॉपुलेशन संभालने का ठेका इन्होंने ले रखा है। कई बार ऐसी चर्चा होती कुछ लोगों से। तो ये सारी इंद्रियां जो हैं, ये अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। जैसे यहाँ पर श्रील प्रभु वर्णन कर रहे हैं, हरे नाम, हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि सुनने में ही उसकी ब्रह्मचारी इंद्रिय लगी रहती है और इसी प्रकार वह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर पाता है। तो इन पांचों पागल घोड़ों को हमें कंट्रोल में करना है, नहीं तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं ये बहुत बलवान है। ये अलग अलग दिशा में हमें ले जाके डुबोने की ताकत रखती हैं और हमसे कोई गलत कार्य हो सकता है। तो भगवत गीता हमें इससे ज्ञान मिल रहा है कि कैसे इन इंद्रियों को कंट्रोल में किया जाए। और ये दोनों निर्देश खाली ब्रह्मचारी या साधु सन्यासी के लिए नहीं है, ये एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी निर्देश है। तो ये ध्यान रखें कि भगवत गीता खाली ब्रह्मचारी के लिए नहीं, एक गृहस्थ के लिए भी है। हम प्रयास करते हैं आज 3 श्लोक पढ़ के 30 तक हम खत्म कर लें। आज छोटे श्लोक हैं। श्लोक नंबर 27 कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए माता जी। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपते। जी माता जी, अर्थ भी पढ़ लीजिए। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। परपट श्रील प्रभुपाद की जय। जय। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, तब तक वह परमात्मा कहलाता है। परागात्मा
ओ, जब कोई बात तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के अंदर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस प्रकार शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए हैं, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। यही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उड़ान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ जो शब्द आत्म साक्षात्कार आया है, ये सर्वोपरि सबसे इम्पोर्टेंट है। आत्म साक्षात्कार अर्थात अपने को जानना कि हु एम आई, वास्तव में मैं कौन हूँ। क्या मैं ये पद्मशा दास हूँ या मैं ये सो एंड सो हूँ। जैसे कोई हमसे पूछे हु आर यू, तो हम अपना नाम बताते हैं। उस नाम में तो हमारे शरीर में मैं कौन हूँ, ये शरीर तो एक दिन नहीं रहेगा, तो क्या मैं भी नहीं रहूंगा। तो इस ज्ञान को रखना आत्म साक्षात्कार ज्ञान है। अपने को समझना कि हु एम आई, मैं एक आत्मा हूँ जिसने अभी ये शरीर धारण किया हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम जब गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी ड्राइव करते हैं तो अपने को हम गाड़ी नहीं समझ लेते, कार के हम ड्राइवर हैं, हम चला रहे हैं गाड़ी को, और हमारा डेस्टिनेशन आएगा, हम कार से नीचे उतर जाएंगे। उसी प्रकार से ये शरीर को हम लोग चला रहे हैं। जब हमारा एक समय आएगा, डेस्टिनेशन आएगा, उस समय शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करेंगे। ऐसे कई शरीर हम बदल चुके हैं। कितने शरीर इस जन्म में, इस संसार में रह के हम आए गए, पता नहीं कितनी बार हम जा चुके हैं। ये हमें वेद पुराण बताते हैं। तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान मिलने ही इस जीवन का उद्देश्य है। ये जो मनुष्य शरीर आपको और हमें मिला है, ये मनुष्य शरीर सिर्फ 8 घंटे की जॉब करने के लिए नहीं मिला है। ये 8 घंटे बस गए, अपना वहां पर सिक्का जमाया, पैसे लेके आ गए, बस खत्म। नहीं, वो एक बाई प्रोडक्ट है, एक काम है, वो कर रहे हैं हम। लेकिन हमें जो ये शरीर मिला है, ये शरीर हमें आत्म साक्षात्कार ज्ञान के लिए मिला है। अब उसको प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि एक तरीका यहाँ बताया गया है कि अपने जो पंच वायु हैं सिस्टम का, पतंजलि योग पद्धति के अनुसार 5 प्रकार की वायु का यहाँ वर्णन है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उड़ान। ये 5 प्रकार की वायु जो है अलग अलग तरीके से शरीर को कंट्रोल करती है। जैसे कि अगर मैंने अपना हाथ ऐसे उठाया, ऐसे हाथ नीचे किया, या चलने फिरने में ये अंदर जो हमारी अपान वायु, ये जो व्यान वायु है, ये हमारे हाथ को ऊपर उठाना, पैरों को चलाना, अंदर से प्रेशर जो लगता है, वो इन वायु का काम है। उड़ान वायु जो हमारी ऊपर की अर्ध गति, जो सांसें ऊपर नीचे चलती हैं, ये उड़ान, ये ऊपर के नीचे आने वाली सांसें जो हैं, ये भी वायु है। तो ऐसे अलग अलग वायु का अलग अलग कार्य है होने का। इनको जो कंट्रोल में कर लेता है और इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आता है, ये इसको पतंजलि योग पद्धति कही गई है। तब वो अपनी कुंडलिनियां जागृत कर सकता है। हम सभी के अंदर कुंडलिनियां भी हैं। अलग अलग कुंडलियों को अगर जागृत करना चाहते हैं, वो सर्वप्रथम इन वायु को कंट्रोल में करते हैं योग के द्वारा। लेकिन इस युग में, कलयुग में, ये कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर सामान्य जीव के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैसे गाइडेंस मिलनी बहुत जरूरी है, वो नहीं मिलती है। फिर हमारा खुद का शरीर हमारा कितना साथ दे, कुछ पता नहीं। तो इसलिए ये कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो आगे शिला प्रभु समझाएंगे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात हमें समझनी है कि हर जितने भी कार्य हैं, ये जो पतंजलि योग पद्धति के द्वारा भी जो कार्य में लगा हुआ है, ये सब
अल्टीमेटली आत्म साक्षात्कार को ही प्राप्त करने में लगे हुए हैं। और जो ऐसा यही सोच के आगे बढ़ता है वह व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकता है। समय थोड़ा सा ऊपर हो गया है, आज 10:25 तक। मेरा उद्देश्य था 30 श्लोक तक लेने का, लेकिन श्लोक थोड़े से बड़े हैं, आज 30 तक नहीं हो पाएंगे। तो हम कथा को ही विराम देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा हम प्रश्न उत्तर को भी ले सकें। तो आज हमने जो पढ़ा उसका थोड़ा संक्षिप्त में परिचय हम लोग मैं देता हूँ कि आज हमने सबसे पहले हमने आज भगवान ने अर्जुन को वर्णन किया कि किस प्रकार से जो हमारा जो जीवन है ये अमूल्य जीवन है, और ये ब्रह्मचारी और जो नियमित गृहस्थ के अनुसार हमें जीवन बिताने के लिए इसको उपयोग में लाना चाहिए। इंद्रिय सुख के पीछे अगर हम पड़े रहेंगे तो हम कभी भी इस जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इस जीवन का सदुपयोग सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि अगर हम इसे कृष्ण की सेवा में लगा दें, जैसा कृष्ण ने कहा है करने के लिए भगवद गीता में, उस हिसाब से जीवन जिए और उनके नाम का जप करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप ब्रह्मचारी को और नियमित गृहस्थ दोनों को करना चाहिए। जो गृह मेदी है, जो कि अपने जीवन को सिर्फ एंजॉय कर रहा है, ये एंजॉय करने के लिए जीवन जी रहा है, उसको कभी इन बातों पर विश्वास ही नहीं होगा। तो हमें विश्वास रख के आगे बढ़ना है और भगवान के शुद्ध नाम का जप करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना है। आगे आगे भगवान ने श्रद्धा के ऊपर और अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। जैसे कुछ ऐसे यज्ञ भगवान ने बताया जो कर्मकांडी यज्ञ हैं, जो किसी हेतु के कारण कर रहे हैं कि मुझे कोई उद्देश्य प्राप्ति हो जाए, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। इसके अलावा एक होता है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान अर्जित करने के लिए कोई व्यक्ति, सिद्धियां अर्जित करने के लिए कोई हवन कर रहा है कि उसे बहुत सिद्धियां प्राप्त हो जाएं या उसे बहुत उच्च अलग प्रकार की ज्ञान मिल जाए। ऐसे 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं। अष्ट सिद्धि वर्णन आता है। अष्ट सिद्धियों में से सिद्धियां हैं आपकी साष्टि, प्राप्ति, प्राकम्य, कामावसायिता, ये सब सिद्धियां हैं। इन सिद्धियों की चर्चा हम कभी आगे फिर करेंगे कि सिद्धि, हर एक सिद्धि से क्या वर्णन मिलता है, लेकिन सब भौतिक स्तर पर है, कोई भी आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है। और इस शरीर के समाप्त होने पर सिद्धि भी समाप्त हो जाती है। सिद्धि का जो सिद्धियां जो करने, तो द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ की परिभाषा भगवान ने दी, लेकिन सर्वोपरि यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, भगवान कृष्ण के नाम का जप। इस युग में जो सर्वोपरि यज्ञ बताया गया है वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने परिवार में, अपने जन समुदाय में बैठ के 10 मिनट 15 मिनट कीर्तन करना सबसे उपयोगी यज्ञ बताया गया है कली संत उपनिषद में भी और भगवद गीता में भी, और इसकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कैसे इस यज्ञ से किस फल की प्राप्ति होती है। तो इन शब्दों के साथ अपनी कथा को हम ये विराम देते हैं। आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो आज की कथा से लेके या कोई और प्रश्न, तो हम 10 मिनट प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर सकते हैं। प्रभु एक क्वेश्चन है मेरा। जी प्रभु। अगर 23rd श्लोक एक बार ओपन करें। 23rd जी। हाँ, अगर इस श्लोक में हम देखें तो यहाँ पे सबसे लास्ट लाइन में है यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। राइट, सबसे आखिरी लाइन है नीचे की। ऐसे यह कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। किस प्रकार की यज्ञ का? जो परम विष्णु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। जी प्रभु, तो क्या प्रश्न? तो यहाँ पे ब्रह्म में विलीन होने का वो दिया गया है। और अगर आप 25वें श्लोक में एक बार चलें। यहाँ पे एक बार नीचे आए, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अगर सबसे नीचे से लास्ट 3rd लाइन अगर आप देखें ऊपर, निर्विशेषवादी के लिए यज्ञादि ही पर ब्रह्म है जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। तो फर्स्ट 23rd श्लोक में हम कह रहे हैं कि
ब्रह्म में विलीन होने, मतलब सारी चीजें अगर जो भी हमारे कर्म फल हैं वो सारे ब्रह्म में विलीन हो जाएं तो हमें कर्म फल के रिएक्शन से हम बच सकते हैं। और यहाँ पे हम इस चीज को रिलेट कर रहे हैं कि निर्विशेषवादी के लिए जो यज्ञ है वो परम ब्रह्म में विलीन की बात हो रही है। तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ा मुझे लग रहा है, इसको थोड़ा जी। से तो पहली बात तो ये प्रभु कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, दोनों ही अलग बातें हैं। पहली जो वर्णन हुआ 23 में, 23 में वर्णन हो रहा है हमारे कर्म फलों का विलीन होना। कौन से कर्म फल? जो व्यक्ति, अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप, क्योंकि उसके यज्ञ का उद्देश्य परम विष्णु कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है, वो भी ऑफिस जा रहा है, वो भी अपने बाल बच्चों का ध्यान रख रहा है, वो भी अपने रोजमर्रा का जीवन जी रहा है जो जीवन एक आम व्यक्ति भी करता है, लेकिन उसका उद्देश्य अब कृष्ण हो गए। ऑफिस जा रहा है, कृष्ण जो रिजल्ट मिलेगा कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। बच्चों की परवरिश कर रहा है ताकि बड़े होकर बच्चे कृष्ण भक्त बने, या कोई भी कार्य उसके जीवन से जुड़ा हुआ है, उसने उसका रिजल्ट अगर कृष्ण पे अर्पित कर दिया है, कर्म फल कृष्ण पे कर दिया है, तो ऐसे कर्मों का फल ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ब्रह्म विलीन अर्थात उसको कर्मिक रिएक्शंस नहीं लगती। यहाँ पे ब्रह्म विलीन होने का अर्थ ये है, और उसे किसी प्रकार का भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। कोई भी भौतिक फल अर्थात ना अच्छा ना बुरा, ना तो उसकी कोई प्रशंसा, ना ना, ना, ना कोई रिजल्ट, यानी रिएक्शन लेस जीवन है उसका। किसी प्रकार कोई उसे रिएक्शन नहीं लगा। वहीं इसके मुकाबले जो अगला श्लोक आपने बोला, उसमें पर्टिकुलरली एक शब्द आया था निर्विशेषवादी। ये निर्विशेषवादी वह व्यक्ति होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा, जो कि भगवान को निराकार रूप में और एक प्रकाश रूप में मानते हैं। उनका सारा कर्म ही उस प्रकाश में, उस निराकार में सम्मिलित हो जाना है। वो खुद अपने को उस निराकार में विलीन कर देना चाहते हैं। कहते हैं निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान का कोई साकार रूप नहीं है। भगवान एक प्रकाश पुंज के समान है, एक निराकार ब्रह्म है, और निर्विशेषवादी सोचता है कि जब मैं भी मरूंगा तो मैं भी उस प्रकाश पुंज में सम्मिलित विलीन हो जाऊंगा और खुद परब्रह्म बन जाऊंगा। उसकी विचारधारा ऐसी है। तो वो उसको उसका जो विलय है, आत्म रूप का विलय ही आहुति। आहुति अर्थात वो स्वयं को उस ज्ञान में विलय कर देता है, अपने को उस एक तरह का अपने को उसका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन ही उसका ऐसा है कि वो अपने को भगवान की उस प्रकाश पुंज में विलीन कर दे रहा है। वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इसे स्पिरिचुअल सुसाइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब अपने को उस प्रकाश पुंज में विलीन कर देंगे और उसमें ही लीन उस निराकार रूप में विलीन हो जाएंगे, तो हम आदान प्रदान तो कर ही नहीं पाएंगे भगवान के साथ। हम भगवान को कैसे भोग लगाएंगे, कैसे भगवान के साथ खेलेंगे, कैसे भगवान के साथ उनकी माखन चोर लीला में सम्मिलित होंगे। इन सब बातों का भगवान से आदान प्रदान नहीं होता है। इसलिए निर्विशेषवादी की आहुति जो होती है वो एक प्रकार से ऐसी कही गई जैसा एक स्पिरिचुअल सुसाइड। इससे पहले वाली वाक्य में एक भक्त की बात हो रही है जो अपने कर्म फलों को विलीन करे दे रहा है। कर्म फल की बात हो रही है वहां पर। यहाँ पर निर्विशेषवादी अपने पूरे व्यक्तित्व को विलीन कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, भगवान के अंदर लीन हो। दोनों ही बिल्कुल अलग अलग बातें हैं और दोनों की रिजल्ट बिल्कुल अलग है। जो पहला वाला व्यक्ति है जो अपने कर्म फलों को विलीन कर दे रहा है, उसकी अंततोगत्वा कृष्ण से मुलाकात होगी, कृष्ण के धाम में उसका जन्म मिलेगा और कृष्ण के साथ वो आदान प्रदान कर सकता है, भगवत धाम जा सकता है, वैकुंठ लोग जाके भगवान के साथ माखन चोरी लीला या भगवान के साथ भोजन खाना जो हम यहाँ संसार में कर रहे हैं वो भगवान के साथ भी संभव है, कर सकते हैं। शास्त्र ये वर्णन कर रहा है। उस व्यक्ति का ये रिजल्ट है। निर्विशेषवादी का क्या रिजल्ट है? निर्विशेषवादी अंततोगत्वा एक प्रकाश में जाके लीन हो जाएगा, बस खत्म। ना उसे किसी से लेना ना देना, उस प्रकाश का ही एक कण बन के सम्मिलित हो जाएगा। तो भक्त की ऐसी इच्छा नहीं होती। भक्त कहता है कि भगवान मुझे चाहे आप बार बार संसार में भेजें, लेकिन हर बार जब भी मैं आऊं मैं आपकी सेवा कर सकूं, आपकी सेवा, आपकी सेवा में सम्मिलित हो सकूं, आपके नाम का जप कर सकूं, आपके साथ आपकी लीलाओं में सम्मिलित हो सकूं, जो भी उसके मन में चाहती, मैं विलीन नहीं होना चाहता। तो दोनों अलग अलग बातें हैं।
क्लियर हुआ प्रभु? कुछ शॉर्ट आउट किसी प्रकार? हाँ प्रभु, एक्चुअली वो वर्ड कंफ्यूज कर रहा था मुझे ब्रह्म, लेकिन उस ब्रह्म से सिर्फ यहाँ तात्पर्य है कि कर्म फलों का नष्ट हो जाना, बस उतना ही मतलब है एक्चुअली। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। अच्छा क्वेश्चन था प्रभु, आपने बहुत अच्छे से पकड़ा इसको। हरे और कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का? लेकिन उसमें और एक बात भी है ना प्रभु, कि एक जगह ब्रह्म है, दूसरी जगह पर ब्रह्म है, दोनों में भी अंतर है। जी, ये जो परब्रह्म की बात हुई है, ये भी आप अच्छा प्रश्न है। जो वहां ब्रह्म में लीन होने वाली बात हो रही है, वास्तव में वो एक प्रकार से कर्मों के फल का विलीन होना है। यहाँ जो परब्रह्म है, ये भगवान का एक तरीके का रूप है, परब्रह्म रूप, जिसको निर्विशेषवादी प्राप्त करता है, जिसे ब्रह्म की स्टेज कहिए। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन आता है, भगवान के 3 स्वरूप हैं। अगर भगवान को किसी को जानना है तो तीन कैटेगरीज होती हैं भगवान को जानने की। पहली कैटेगरी है परब्रह्म रूप भगवान का, प्रकाश पुंज, भगवान एक प्रकाश के समान है, बड़ा विशाल का एक प्रकाश है, वो भगवान है। कई लोग उस रूप में भगवान को मानते हैं, ये परब्रह्म उसका सूचक है। दूसरा भगवान की कैटेगरी है परमात्मा रूप। कई लोग कहते हैं भगवान परमात्मा रूप में आपके मन में, मेरे मन में, हम सभी के अंदर भगवान परमात्मा रूप में विद्यमान है, और हैं भी, सच में भी हैं, लेकिन परमात्मा के आगे वो नहीं सोच पाते। तीसरा कैटेगरी है भगवान को भगवान के साकार रूप में मानना। जैसे भगवान साक्षात, जैसे मैं इंसान हूँ वैसे भगवान भी एक इंसान है, जैसे मेरे 2 हाथ पैर कान नाक मुंह है, जैसे भगवान के भी 2 हाथ पैर कान नाक मुंह है। जैसे मैं घर में रहता हूँ, मेरा घर है, वैसे भगवान भी घर में रहते हैं, भगवान का भी घर है। मेरा घर सेंट चार्ल्स में है, भगवान का घर वैकुंठ लोक में है। तो इसे कहते हैं भगवान रूप में, भगवान स्टेज, भगवान को एक साकार रूप में, उनको एक व्यक्तित्व के रूप में समझना। तो ये जो परब्रह्म की बात हुई है प्रभु, ये भगवान की फर्स्ट कैटेगरी, जो ब्रह्म रूप, प्रकाश रूप में, जो निर्विशेषवादियों का प्रमुख गंतव्य है, उसके सूचक है। और ब्रह्म जो पहले ब्रह्म में लीन होते, जो आया 23rd में, तो जो उसमें पहले वाले basically- ब्रह्म में आया, वो ब्रह्म में हमारे कर्म लीन हो रहे हैं, वो Right. ब्रह्म वाला रूप नहीं है। ब्रह्म में विलीन होने का, ब्रह्म अर्थात कि उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, अर्थात कि उसका जितना भी कर्म फल है वो क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये ब्रह्म का वो सूचक नहीं है जिसमें कि Mhm. भगवान के किसी संबंध का या भगवान कैटेगरी का सूचक हो रहा हो। कर्म फल की विलीनता, कर्म फल को खत्म करने की बात को यहाँ उपमा दी गई है। तो ये ब्रह्म में कर्म अगर लीन हो जाते हैं, तो हम अगर कल्प और कल्पांत की बात करते हैं, तो बेसिकली नेक्स्ट कल्प में वो व्यक्ति जिसके कर्म लीन हो गए हैं, उसके जन्मने का सवाल नहीं आता है। जी प्रभु। वो परब्रह्म में विलीन होना या परब्रह्म में आत्म स्वरूप को आहुति देना, आत्म स्वरूप की आहुति देना, उसका बेसिक ये है कि क्या बोले, ज्ञानी जो है, ज्ञानी ने अपने आप को परमात्मा में वो अलग तरीके से बट विलीन कर दिया है यज्ञ के माध्यम से। जी, वो दोबारा आ सकता है प्रभु, कल्पांत में उसका डाउनफॉल हो सकता है। मतलब जो अपने को अच्छा। विलीन कर देता है, कर्म जो परब्रह्म में अपने को विलीन कर रहा है, वास्तव में उसका डाउनफॉल भगवत गीता में ही वर्णन आता है कि ऐसे व्यक्ति जिनका प्रमुख उद्देश्य वह है, वो अपने स्थान से भी डाउनफॉल होता है, क्योंकि वो भगवान से आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। तो भोगने की जो प्रवृत्ति है, भोग इच्छा की जो प्रवृत्ति है, वो मन में तो बनी हुई है। भले ही हमने भगवान को के में तदात्म्य होने के विचार से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भोग की इच्छा प्रबल होने के कारण संसार में उसे दोबारा आना पड़ता है। लेकिन जिसके कर्म फल विलीन हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, और क्योंकि वो कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है, तो वो कृष्ण के धाम को जाता है। और कृष्ण के धाम जाने का अर्थ है भगवान कृष्ण भगवत गमन करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांश्च भजामि हम, ये यथा मां अप्रपद्यन्ते, मेरे धाम में जाने के बाद कोई व्यक्ति वापस नहीं आता वो लोग वृंदावन में।
ये डिफरेंस आ जाता है। कर्म, अपने कर्मों को विलीन करना और अपने आप को स्वयं भगवान में तादात्म्य कर देना। स्वयं भगवान में तादात्म्य करने में डाउनफॉल, गिरने की संभावना बनी हुई है। तो अलग प्रभु, होपफुली आपको ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं कर दिया मैंने वो पूछ के? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न था प्रभु, बहुत अच्छा आपने प्रश्न, इसलिए मैं पूछता हूँ कि प्रश्न समाधान होंगे तभी आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। भगवद गीता थोड़ा सा ये आगे टिपिकल या कुछ इस तरह से है कि हो सकती है कि प्रश्न पूछते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो क्लियर होता रहेगा और मेरा भी रिवीजन होता रहेगा। हम कोई प्रकांड विद्वान नहीं है, आप सभी के आशीर्वाद से थोड़ा बोल पा रहे हैं और हमारा खुद का भी रिवीजन हो रहा है इस तरीके से। और आपके आशीर्वाद से हमको भी फायदा भगवान का है। आशीर्वाद है प्रभु, वैष्णव का आशीर्वाद है। आप सभी शुद्ध जीव हैं। हम सभी किसी न किसी कर्मों के बंधन के कारण संसार में आ गए, लेकिन अब हमें मिशन हमारा एक है कि ह्यूमन मिशन की गो बैक टू होम, बैक टू गॉड है। शिला प्रभुपाद का यही हम पे आदेश था कि एवरीवन शुड हैव टू मेक दैट मिशन, कि ये मनुष्य जीवन मेरा आखिरी जीवन होना चाहिए, बस इसके बाद और जन्म नहीं लेना। ऐसा सोच के कार्य करना। बार बार अब बहुत जन्म ले लिए, बार बार जन्म लेना मरना नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि हम 3 गुणों में रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जैसा आपने बताया था पहले, और कृष्ण भावना भवित भी होते हैं। तो क्या ये संभव है जो इन 3 गुणों से प्रभावित है वो कभी कृष्ण भावना भवित भी हो? बिल्कुल हो सकता है। तीनों गुण जब तक हम पे, गुण अर्थात रस्सी को और गुण कहते हैं, और ये रस्सी किनकी है? कर्म, हमारे जो प्रकृति के 3 गुण हैं। एक प्रकार से जब भी हमारी डिफॉल्ट स्टेट जो है उस रजोगुण की स्टेट है, ना हम किसी का बुरा करते हैं ना भला करते हैं, ये हमारी डिफॉल्ट है। मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग ऐसे बन के पैदा हुए कि अपने काम से काम मतलब है, अपने परिवार से मतलब है, अपने समाज से, अपने समुदाय से या अपने देश से, ये मतलब के काम कर रहे हैं। इनमें से कोई अपनी डिफॉल्ट स्टेट से थोड़ा सा ऊपर उठता है, अच्छे काम करने लगता है, ओल्ड एज होम्स खोल दिए, या सभी के लिए एक चैरिटेबल कोई ऐसा काम कर दिया कि हर प्रकार के, हर समुदाय के लिए अच्छा काम रहा हो, अच्छा मतलब उसके फायदे के लिए हो जाए, तो सतोगुण की तरफ बढ़ जाता है। अपनी डिफॉल्ट स्टेट से हम नीचे गिरते हैं जब हम क्रोध या नशा या किसी प्रकार का कोई गलत काम करने के प्रति प्रवृत्त हो जाते हैं, तो अपनी डिफॉल्ट स्टेट से नीचे गिर के तमोगुण में गिर जाते हैं। बाय डिफॉल्ट हम रजोगुण में रहते हैं। जब किसी भक्त के माध्यम से या किसी साधु संघ के द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि मेरा मनुष्य जीवन, ये मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है और इस मनुष्य जीवन का प्रमुख उद्देश्य कृष्ण को प्राप्त करना है, और मैं अपने आप को कृष्ण से संबंधित महसूस करता हूँ कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे हैं, मुझे उनके लिए कार्य करना है, जैसे मैं अपने पिता के लिए, माता के लिए काम कर रहा हूँ। तो जब ऐसा करके वो अकर्म करना प्रारंभ करता है तो तीनों गुणों से पार पहुंच जाता है और एक शुद्ध सत्वगुण, जिसे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस स्टेट कहते हैं, वहां पे स्थित हो जाता है जाकर। जब तक हम उस स्टेट पे नहीं पहुंचे, कृष्ण कॉन्शियस स्टेट तक, तब तक हम एक पेंडुलम की तरह से दिन में 24 घंटा रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से फिर रजोगुण से कभी कभी तमोगुण, फिर तमोगुण से फिर रजोगुण, ऐसे ऑस्किलेट करते रहते 24 घंटे में। कभी हमारे मन में बहुत अच्छे विचार आ गए तो हमने डिसाइड कर लिया कि चलो जी मैं आज दान दे देता हूँ, जन्माष्टमी आ रही है, भगवान कृष्ण के मंदिर में सेवा के लिए दान कर दिया, तो सतोगुणी भाव आया एकदम से, तो दान करते पैसा निकल गया, भगवान की सेवा में निकल गया पैसा। वहीं मन में या किसी ने दान नहीं किया, किसी ने सोचा कि अच्छा जी मेरे बहुत ही किसी हमने होमलेस पर्सन को देख लिया, उसको हमने खाना ला के दे दिया, तो सतोगुणी विचार आ गए। लेकिन जैसे खाना दिया, अपने गाड़ी में आके बैठे, घर पहुंचे, घर पे पहुंचते ही एकदम से देखा कि सब कुछ पूरा घर तहस नहस बच्चों ने कर रखा है, बच्चे घर में अकेले छोड़ गए थे, उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया घर, तो बच्चों पे एकदम क्रोध आ गया, क्यों तुमने मेरे पीछे पूरा घर तहस नहस कर दिया, एकदम तमोगुण में गिर गए। अभी सतोगुण में थे, सतोगुण से तुरंत तमोगुण में डाउन हुआ जैसे ही क्रोध आया। फिर धीरे धीरे शांत हुआ गुस्सा, तो फिर थोड़ा हम रजोगुण के स्टेज पर आए, फिर अपने बारे में सोच रहे। तो ये जो
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 24 घंटा हम सभी पे एक कंटिन्यूसली एक्ट हो रहे हैं और हम लोग इन्हीं के बीच में ऑस्किलेट करते रहते हैं। जैसे ही हमें पता लगता है कि मैं कृष्ण का हूँ और मुझे कृष्ण के लिए कार्य करना है और मुझे हरि नाम जप करना है, वो स्टेट आते ही हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाते हैं। फिर हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, जब वो उसमें निष्ठा स्टेज पर आ गए, जब वो कभी श्रद्धा से निष्ठा पर, अच्छा, निष्ठा स्टेज पे जब हम आ गए, तो निष्ठा स्टेज पे आके मेरे जीवन में चाहे सुख आएगा या दुख आएगा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मुझे, क्योंकि मेरी स्टेज तीनों गुणों से परे है और मुझे सब कुछ कृष्ण में ही दिख रहा है कि दुख भी आ रहा है तो कृष्ण ही भेज रहा है, सुख भी आया तो कृष्ण ही भेजा, कृष्ण की इच्छा है, मेरा काम है कृष्ण को प्रसन्न करना। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर पे कष्ट भोगते हुए भी वृंदावन में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं या अलग अलग काम करते हैं जैसे कृष्ण प्रसन्न, उनके लिए सुख दुख कोई मायने नहीं रखता है। तो आपके प्रश्न के अनुसार हम तीनों गुणों से पार जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए निष्ठा स्टेज तक उठना पड़ेगा और प्रोसेस में हमें स्टेबल होना पड़ेगा। नहीं तो हम इन तीनों गुणों में एक पेंडुलम की तरह से ऑस्किलेट करते रहेंगे, पूरी जिंदगी निकल जाती है ऐसे ऑस्किलेट करते हुए 24 घंटे में से, कभी हम इससे बाहर नहीं निकल पाते। भगवत गीता ही हमें वो ज्ञान दे रहा है कैसे बाहर निकला जाए इस ऑस्किलेशन प्रोसेस से। जी प्रभु जी, धन्यवाद। और एक बात और है कि ये जो तीनों गुण हैं जिनमें हम रहते हैं, कभी तो हम कॉन्शियस रहते हैं बट हम कभी कॉन्शियस नहीं रहते हैं और हम तमोगुण में चले जाते हैं। फिर बाद में हमें लगता भी है कि हमने क्यों गुस्सा किया, क्यों क्रोध किया। बिल्कुल, तो ये इसलिए क्योंकि माता जी बहुत सटल रूप में हम पे एक्ट हो रहे हैं, बहुत सटल, एकदम आप दिखते नहीं है लेकिन एक्ट इस समय भी हो रहे हैं। इस समय भी आप पर तीनों गुणों का या हम सभी पर चल रहा है, लेकिन हमें महसूस नहीं होगा क्योंकि वो सटल रूप में अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग मैक्सिमम रहते हैं, तो इसलिए हमें पता नहीं लग पाता। जी। लेकिन रियलाइजेशन जब होती है, वो रियलाइजेशन होना ही सतोगुण की सूचक है, मैंने ऐसा क्यों किया। उस समय हम उस गुण से ऊपर उठ रहे हैं, जब हमारे मन में रियलाइजेशन नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब हमें जब हम अपने को बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था, तो हम उस स्टेट से ऊपर निकल के आ गए ना, तो हम बोल रहे हैं कि हमें नहीं करना। जब तक हम उस स्टेट में थे तब तक हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा गलत काम। लेकिन अब हमें रियलाइज हुआ कि हमने गलत काम किया, तो रियलाइजेशन इफेक्ट ही हमें उस निम्न गुण से ऊपर उठा के ले आया है। तो कोशिश श्रील प्रभुपाद वर्णन करते थे कि मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि वो सतोगुण में अपने को स्थिर रख सके, हमेशा इतना कॉन्शियस रहे कम से कम कि मुझे सतोगुण से नीचे नहीं गिरना, बस कोई ऐसा काम नहीं करना जो मुझे रजोगुण और तमोगुण में ले जाए। तो उसके लिए मुझे पहले रजोगुण और तमोगुण का पता होना जरूरी है कि गुण होते क्या है। आम जनता में तो पता ही नहीं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया, किसी को पता नहीं कि क्या गुण है, कैसे एक्ट कर रहे हैं। सब बस एक ही धुन, बस पैसा कमाने लगे हुए, चाहे सतोगुण में पैसा कमाए, चाहे रजोगुण में, चाहे तमोगुण में, उनको कोई लेना देना नहीं, किसी का नुकसान हो कुछ हो। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान है उसको कोशिश करना है कि वो अपने को सतोगुण तक स्थित रखे, क्योंकि सतोगुण से कृष्ण कॉन्शियसनेस तक उठना आसान है, क्योंकि एक ही स्टेप लेना है। रजोगुण और तमोगुण से कृष्ण कॉन्शियसनेस तक उठना थोड़ा मुश्किल है, एकदम से ड्राइव नहीं ले जा सकती। तो सतोगुण में आप स्थित रखेंगे अपने को, तो कृष्ण कॉन्शियस स्टेट आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे ऊपर हो गया है, लेकिन अच्छे प्रश्न थे और उसमें आप बस ये ध्यान रखें कि ये समय प्रैक्टिकली भी करते रहना है। प्रयास का मन में आप कभी विचार रखें कि सोचते रहें कैसे इस समय मैं कौन से गुण में हूँ। जैसे मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे अंदर ऐसा क्या विचार आया कि मैं एकदम से कोई गलत विचार मन में आया या कोई अच्छा विचार आया, तो मैं अपने गुणों को हम टटोलते रहते हैं। इस समय मेरा क्या गुण चल रहा है, या शाम होते होते मेरा गुण रजोगुण की तरफ हो जाता है। समय का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। सुबह के 4 बजे से लेके 10 बजे तक का जो समय है वो सतोगुणी समय है। उसमें आप कोई भी काम करेंगे आपके अच्छे विचार आएंगे, अच्छे आप कार्य में प्रवृत्त होंगे। 10 बजे से लेके 4 बजे तक का जो समय होगा शाम के, वो रजोगुणी समय है। और शाम को 4 बजे से लेके रात को 11 बजे तक का समय तमोगुणी समय होता है।
तो समय रात के समय में भी हम लोग कीर्तन अगर करते हैं, हम करते हैं, तो हम सतोगुणी रह सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को हम यही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप आते रहें ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम कथा को आगे बढ़ाते रहें। जो भी रिकॉर्डिंग मिस हो गई है वो रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा आप सभी को, और ताकि आप सभी उसको सुन सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे आज कृष्ण। आज भगवान के दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जी माता जी, भगवान की इच्छा थी, अभी समय नहीं बचा था, वरना मैं दोबारा फिर करा देता। अगर आपका समय है तो मैं मैंने फोन तो डिस्कनेक्ट कर दिया है। कोशिश ये रहेगी हर हफ्ते भगवान के दर्शन हो जाए। जी प्रभु जी, मैं आई भी लेट थी तो फिर आपने फिर से करा दिए थे तो फिर बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।